Yes, good morning, everyone, and a very warm welcome to all of you. It's wonderful to have you all. Thank you for connecting again on a Sunday. And as we promise at AKG's OVMs, we are always striving to provide maximum awareness and provide as much support as possible to all our patients and their caregivers. And to continue in that series, we are having our second webinar today on the importance of physiotherapy for MND patients and how physiotherapy can help in treating the cases and how uh, with the medicines with the homeopathic medicines the treatment process can be enhanced and fastened. So for that we have our very special guest today, Dr. Arvind Walia. He's a very senior physiotherapist practicing it in West Delhi and North Delhi for many years now, and he's been closely associated with us and AKG's OVMs. He's been seeing a lot of patients of ours, and especially for MND cases as well. And I'm sure all of you will be very benefited from the knowledge that he has to share, and how physiotherapy can help our MND patients. So I would like Dr. AK Gupta to kindly welcome Dr. Walia, and so that we can start the process. Dr. Gupta. Good morning. Thank you, Dr. Sanket. Thank you. And good morning, everyone. At a sunny day here, partially cloudy and partially raining also. So have the blend of cocktail of, the weather, which we can enjoy. And I'm very happy to, welcome Dr. Nakul Prashar, Dr. Osman Mulaki, Dr. Arvind Walia, and all my dear patients and their family members. It has been very, very heartening to have the uh, very good, overwhelming response of our last, webinar, which we held on the 1st of June. And that really, made me feel happy and to carry on with our this series of webinars to create awareness among this ALS and MND problem to talk about, like last time we had been talking about the general way. I've talked about the general part of the ALS and MND, and then the significance and importance of psychology for the patients as well as their caregivers, because it is very, very important again to know that when we talk of MND and the part what they see and they read on internet, they get disheartened and all that. So whereas the fact is that one has to accept the problem and work upon to improvise and to with the faith and this thing treatment. There are cases where we have got a reversal also. So not many, but yes, there are cases which have been recorded and reported also. So one need to keep a patience, keep faith in themselves, faith in their treatment, whosoever is their treating doctor, and faith in the system, whatever they have been taking for. But today is the time when we need the integration, because what has been happening in the modern medicine, they've been saying time and again, there is no treatment, there is no cure, there is no treatment, there is no cure. So which makes the patient feel very, very bad and disheartened, and one feels frustrated. And unfortunately, this particular sentence gets imprinted into their brain and the brain of their family members, which makes them rather skeptical about the other therapies which have been offering good treatment also. They see it with a little doubt. We don't feel anything wrong from that side, because that is a human psychology, human nature. Whatever you read, you get the imprint and you start the developing that those kind of impressions. But ultimately, we need to see the cases we have been seeing here. We have been reporting in our uh, YouTube channel also, where there have been subsequent improvement in the cases in the patients have been seen and notified. The testimonies are there, so they should be enough to make you feel more encouraged to face the life as it comes by with the positivity. And
with the proper treatment and proper combination of, I mean, as I said in the last time also, that we need at least, there are four components for the proper treatment. One is the compliance of treatment in the form of medicine. Second is, I mean, physiotherapy. Third is psychological, I mean, this thing. And the fourth is the environmental. So all these components are essential to get the best of results in the, I mean, patients who have been suffering from such kind of a disease. And in the last time we had introduced Dr. Nakul Parashar, that we have been very happy to say that the Shanti Foundation has joined hands with us in this mammoth work of creating awareness about ALS and MND all around. And we have decided to, I mean, carry on with this series. And I've shared with you the article which was published in the Vigyan 2047, and they have very kindly, I mean, given us a time and space that we can every month you will be seeing some case reports or case history of one of the other patients, to make you feel more uh, uh, confident about yourself and more confident about the treatment what you've been taking, and been keeping the zeal of living, rather than, I mean, feeling frustrated and having a negative and thoughts and leading into the depression for both patients as well as their caretakers. And today, I mean, as I said, that we'll be talking about the physiotherapy, and I mean, I'll be speaking both in Hindi, English also, because there are many people who might not be able to understand the complete English, and there are, I mean, few who would not understand Hindi at all. So mixture of this will do. कि इसमें जो फिजियोथेरेपी का रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने अपने मरीजों में हम देखते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो उनका थेरेपी का मतलब होती है एक्सरसाइज करते हुए, कहते हैं हाँ जी हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, तो वो यूजली बताते हैं कि हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ठीक है, पर वो फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है, और नीदर दैट इज द complete part of the physiotherapy which is required, because the physiotherapy would be helping the muscles which have been involved. They need, I mean, different kind of a therapies, different kind of exercises where the muscles need to be built up, muscle strengthening has to be done up, and where the wasting has already come, there also we need to work hard to bring back the muscles. And until the muscles have been brought back and nerves are not been, I mean, given that power to give the message, so the problem will sustain there. So to overcome that, things, physiotherapy is a very, very important and integral part of therapy and complete treatment. Apart from this, the physiotherapy, there is a diet part is there, which we'll be definitely taking into the next webinar. Probably will be take about the nutrition and diet, and as well as the speech therapy. Because as we to again, I mean, start with that what MND or ALS is, you all know. But I would still like to, I mean, share few things, because there are a lot of misconception, and there are a lot of people who think that if they have this kind of a problem, so they have to undergo, they will be undergoing all symptoms of motor neuron disease or MND or ALS eventually, which is the ultimate culminating into the kind of a fatal one. So it is not necessary that each and every patient would have all those symptoms in one patient. There could be a patients who have got a bulbar onset, so their speech could be, I mean, slurred. They could, I mean, possibility of losing the speech, possibility of having difficulty in swallowing, or, I mean, eating, chewing, and getting suffocation, a kind of a feeling, gagging feeling could be there. There are other people who have problems in the muscles of the hands. They find very difficult to button their shirt or even to hold something. The muscles become weak, their fingers become weak, they become get clawed also. So these are the symptoms also in certain patients. Then there are other patients who have difficulty in walking. They might get as a what we call as a, I mean, foot drop. There are patients who get a wrist drop. There are patients who get, I mean, absolutely buckled up suddenly when they stand.
they get buckled up and fall there and then. So these are the different variants, different type of presentations of this disease, which may vary from individual to individual. And according to the problem, the exercises have to be devised. A general exercise, doing routine exercises, stretching your arms, stretching your back, stretching your leg, is not wrong, not bad, but it will not give us the desired result as what we are looking forward to for the treatment of the patient. So this is very important. And then there is a problem with the neck. There's a falling of neck forward. The patient finds very difficult to even raise, और उनको वो करने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, गर्दन झुक जाती है, उठा नहीं पाते. तो उसके लिए भी एक्सरसाइज हैं, या वी आई टेल देम टू यूज कॉलर एंड ऑल दैट. And I'm sure Dr. Arvind Walia will tell us, I mean, what are the actual things which they should use, because जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती पेशेंट के पास, तो वो ही कीप्स ऑन वंडरिंग कि जी मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, या ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, अपने अपनी तरीके से सोचते हैं. और वो कहते हैं कि हमें तो जो फिजियोथेरेपी हालत है, वो हमें कुछ करंट लगाते हैं, तो वो सिर्फ मशीनों से काम करते हैं. तो ये हम यहाँ पे आज इस कॉन्सेप्ट को भी बड़ा क्लियर करना चाहेंगे. डॉक्टर वालिया को मैं आई रिक्वेस्ट कि ही शुड मेक इट वेरी क्लियर कि जो करंट लगाने वाला मशीन है, वो जिसमें हम एक मसल स्टिमुलेटर होता है, एक टेंस होता है, एक IFT होता है, या कुछ स्टेप होते हैं, तो लोगों को पता नहीं है. और जो दूर दराज गांव में बैठे हैं, उनके पास अगर या तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट है नहीं, और अगर हैं तो वो पार्शियली हैं या हाफ ट्रेंड है, एंड दे जस्ट आप कुछ मशीन लगा के उसको वो कर जाते हैं और वो कहते हैं ये फिजियोथेरेपी होगी. तो उनको मैं उनसे पेशेंट को ये कहता हूँ, आप अपने मेरे को अपनी वीडियो भेजें, तो मैं उसको देखूंगा कि जो फिजियोथेरेपी आपकी हो रही है वो ठीक है या नहीं. ये भी एक ज़रूरी पार्ट है. इसके अलावा ये डॉक्टर वालिया हमारे एक ही यूनियंस के साथ भी जुड़े हुए हैं. ही इज आर आई मीन सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट विद अस. तो आने वाले टाइम पे हम विल गिव हिज नंबर एंड ऑल दैट. किसी को भी फिजियोथेरेपी से कंसर्न कोई भी क्वेरी होती है या अपना पेशेंट को वो दिखाना चाहते हैं, दे कैन कंसल्ट हिम ऑल्सो, आई मीन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन एज वेल एज फॉर द आई मीन देयर एंटायर ट्रीटमेंट. कि जो अगर जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसमें जा रहा है, वर्केबल हो रहा है, और उसका हमें रिलीफ और फ़ायदा मिल रहा है. अल्टीमेट एम हमारा यही है. आज अभी इसके अलावा लोगों की आपके जो अपने पेशेंट हैं, इनकी कोई क्वेरीज होंगी या पिछली वेबिनार्स के थ्रू कोई क्वेरी है, तो वो बाद में आप अपना हैंड रेज करके या क्वेरी भेज के एक अपने वहाँ पे व्हाट यू कॉल जो मैसेज बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं. तो डॉक्टर कार्तिक विल पिक अप एंड वन बाय वन, तो हम उसको वो भी कर लेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आई मीन इंट्रोड्यूस डॉक्टर अरविंद वालिया विद अस. एंड ओवर टू डॉक्टर अरविंद वालिया. थैंक यू. सबसे पहले तो आभार सर, आपने मुझे वेबिनार का हिस्सा बनने दिया. थैंक यू सो मच. सर आवाज आ रही है? जी आ रही है. हाँ जी. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जो पेशेंट कर पाता है उसके लिए वो इजी काम है, मुश्किल वाले को नहीं करता है. तो ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है कि जो इजी है, जो मैं कर पा रहा हूं वही करता रहूं. राइट. जैसे कि हमने बोतल का ढक्कन बंद करना है, उससे नहीं हो पा रहा तो वो उसको नहीं करता है, जबकि उसको ट्राई करना चाहिए. 10 बार नहीं होगा, 15 बार नहीं होगा, लेकिन 20 बार के बाद वो होना शुरू हो जाएगा. जब तक हमारा मसल मेमोरी जनरेट नहीं होगा, ब्रेन से कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होगा. जब तक वो कनेक्शन हमारा बिल्टअप होता है, जब तक हम गिव अप कर देते हैं. तो ट्राई करना, हमने हर चीज को रोज ट्राई करना है. देखिए MND में क्या है कि अर्ली स्टेज में हम मेंटेन कर सकते हैं मोबिलिटी, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर जो हाथ पांव अकड़ जाते हैं. राइट. रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग, gentle passive assisted stretching prevents joint stiffness and contractures. Regular prolonged stretches and splinting are helpful. Muscle activation and weight bearing in low impact moderate exercises, जो कि छोटी एक्सरसाइज हैं लेकिन उनका बड़ा इफेक्ट होता है.
जो कि वेट बेर के साथ की जाती है। अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती है जो कि मरीज कर पाता है। ऐसा भी काफी एक्सरसाइज है जो हम घर पे अपने छोटे छोटे गैजेट्स को सेल अपना सॉरी परचेज करके उसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी पेडोसाइकिल है, टंग एक्सरसाइजर है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे हम टंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट को सारा दिन लिटा करके रखते हैं, होल डे लाइन पोजीशन, जिससे कि उसकी ब्रीदिंग और साउंड क्वालिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, चली जाती है। आपने कभी नोटिस किया आप लेट करके बोल क्यों नहीं सकते हैं? ठीक इसी तरीके से बेड पोजिशनिंग, advise frequent positioning changes a good pressure release and prevent sores and especially improvement with neck and hold weakness। जो सेमी कॉलर आप पहनते हैं, गर्दन इधर से उधर ना गिरे, जिनकी गर्दन होल्ड नहीं होती है, स्टैटिक कॉलर, स्टैटिक सर्वाइकल कॉलर इज देयर, मार्केट से मिलता है, उसको आप पहन सकते हैं। कार्तिक दिखाएंगे आप? यस सर, मैं आपका स्लाइड चला देता हूँ। हाँ, सर्वाइकल स्टैटिक कॉलर। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी, देख रहा हूँ, देखो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये स्टैटिक कॉलर है जिसको लगाने से आप पेशेंट की गर्दन को सीधा रख सकते हैं। पेशेंट की ना तो गर्दन पीछे गिरेगी, ना दाएं ना बाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, दिस इज डायनेमिक पॉपअप स्प्रिंग। इसके साथ मरीज के हाथ को आप सीधा भी रख सकते हैं और ये एक्सरसाइज का काम भी करता है, जिससे कि पेशेंट अपनी मुट्ठी थोड़ी बहुत बंद तो कर लेता है लेकिन खोल नहीं पाता। इसमें स्प्रिंग लगी हुई देख रहे हैं आप, ये एक्सपेंड भी करता है और आप इसको फ्लेक्स भी कर सकते हैं। और एक खास तरह का स्टैंडिंग फ्रेम आता है पेशेंट के लिए, उसके साथ आप मरीज को खड़ा भी कर सकते हैं। देखो, ये देख रहे हैं आप, इसकी मदद से आप पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं। दिस इज स्टैंडिंग फ्रेम। नेक्स्ट, दिस इज टंग एक्सरसाइजर, जिससे कि आप पेशेंट की टंग को घर पे जो भी पेशेंट के पास है वो उसको रोज प्रैक्टिस करा सकता है टंग की एक्सरसाइज की। ये छोटा सा डिवाइस है, आप अमेजोन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। राइट, आप में से जो भी पेशेंट है, किसी के पास इस तरह के गैजेट्स हैं? क्या आपका थेरेपिस्ट जो भी कोई करा रहे हैं थेरेपी, कोई इनमें से कोई चीज अप्लाई कर रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है शायद। ठीक, नेक्स्ट, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि करंट की बात है, ये एंकल एक्सरसाइज है जिससे जिनका फुट ड्रॉप और हमारा काफ मसल वीक हो जाता है, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल है। इसको बैठ के हम आराम से चला सकते हैं आगे पीछे, जिससे कि आपका गैस्ट्रोनोमियल मसल जो है काफ मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू एक्टिवेट गैस्ट्रोनोमियल मसल विद दिस गैजेट। नेक्स्ट, दिस इज हैंड ग्रिपर। नॉर्मली आपको फिजियोथेरेपिस्ट बॉल सजेस्ट करते हैं, दिस इज द रियल ग्रिपर। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज पेडोसाइकिल। यू कैन लाइक दिस exerciser, you can purchase on Amazon, just 3,000 rupees। Next, सब वीडियोस है सब। वो करंट वाला दिखाना।
यस सर। हाँ, ये प्ले करिए। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा वो करंट लगाते हैं। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये टेंस मशीन का मूवमेंट है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व फ्लूइड। नॉर्मली थेरेपिस्ट जो है इस मशीन को यूज करते हैं। इस मशीन की पहचान ये है कि इसमें 3 से 4 कनेक्शन होते हैं। हमारे एमएनडी केसेस में टेंस का बहुत कम यूज है। मेन यूज हमारा मसल स्टिमुलेटर का है, जिससे कि हम मसल्स को रीजनरेट या उसको पावरफुल बना सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये मसल स्टिमुलेटर का है। हमें इसकी जरूरत होती है एमएनडी पेशेंट को। ये देखिए, इसका मूवमेंट बिल्कुल डिफर है, हमें इसकी जरूरत होती है। नॉर्मली इसमें 2 ही तारें होती है, इसकी पहचान है, मरीज को नहीं मालूम होता, तो आपको इससे थोड़ी मदद मिलेगी। इस मूवमेंट को ध्यान से देखिए आप। तो आप में से किसी को कोई भी थेरेपिस्ट आपको इस दोनों मशीन में से कोई मशीन लगाता है तो आप इस प्रोग्राम के बाद बताइएगा। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी केयर की। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है, डीप ब्रीथ करना है, पेशेंट को लिटा के नहीं रखना, बिठा के काम कराना है उनको, जिससे कि उनकी थ्रोट की मसल्स भी जो है थोड़ी बिल्टअप रहे। राइट, manual therapy and modalities. Use soft tissue mobilization, massage, heat and cold and tense comfort. Means जब हम पेशेंट में देखेंगे दर्द है, कहीं जॉइंट में स्टिफनेस है, तो उसमें टेंस यूज कर सकते हैं। और भी गैजेट है हमारे पास मोबिलाइजेशन के लिए, रिज्मेटिक रोटेशन विद स्प्लिंट्स, ऑर्थोसिस में भी हेल्पफुल, skin pressure, regular repositioning and cushioning are key, what especially in lower limbs. Our role is not to cure but to optimize functions of comfort through the individualization stage. Appreciate individual strong muscular collaboration. You help the person with MND with life with dignity and greater independence as far as long possible. Thank you. जी सर। जी, अभी देर आर नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनकी, जैसे अभी डॉक्टर वाले ने बताया कि मेरे पास आते हैं, मैम उनको कोई एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूँ, एंड आई टेल देम, वो कहते हैं होता नहीं। जब वो होता नहीं है तो उसका करना ही छोड़ देते हैं। जब वो करना छोड़ देंगे तो उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहला एक थंब रूल है कि जिस पेशेंट को जो भी एक्टिविटी बताई जाती है, जो करने में उसको दिक्कत होती है, वो उसको छोड़े नहीं पर करता रहे। अगर नहीं हो रही कोई बात नहीं, पर उसे कीप ऑन डूइंग। अब जैसे किसी का कोई हाथ और राइट हैंड से खाने में दिक्कत हो रही है तो उसको खाना बंद कर लेफ्ट हैंड से खाना शुरू कर दिया उसने, या कोई किसी ने खिलाना शुरू कर दिया। तो जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन होती है तो आपकी ये एक बॉडी का और ह्यूमन नेचर है कि आपको जो चीज़ कंफर्ट जोन से होती है आप वो करते हैं। तो वहाँ पे आने के बाद वो चीज़ बिल्कुल डिफ्यूज हो जाती है, तो उसकी यूटिलिटी दोबारा रिजनरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप उसको करते ज़रूर रहें, चाहे दिक्कत हो आपको, बट करते रहें। और धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर ने बताया, कुछ समय बाद यू विल बी एबल टू डू इट। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि हाथ नहीं चल रहा है, वो चला नहीं रहे बेसिकली। यस, वो क्योंकि जहाँ पे चल नहीं रहा उसने चलाना बंद कर तो बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके हाथों में उंगलियों में दिक्कत है, तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि उसकी पानी की बोतल को, ढक्कन को खोलो बंद करो। पहले अगर आप शुरू करें
तो एक वो जैसे टूथपेस्ट या वो होता है ना, उससे सिर्फ 3 उंगलियों से काम चला सकते हो, बटन उसको पेस्ट को खोलने के लिए जी 3 उंगलियों से जो लगाएं, फिर उससे थोड़ी बड़ी ले लें 4 उंगलियों से, फिर 5 बड़ा जार ले लें, तो उसको खोलने बंद करने में ये सर, घर प्रैक्टिस की करते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी हैं, बहुत हाँ, बेनिफिशियल और अगर आप ये बैठे कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं इनको। अच्छा, जी जिन पेशेंट्स की उंगलियां मुड़ गई हैं उनको मैं बताता हूँ कि मैं डॉक्टर वाली, आप भी प्लीज उनको बता दीजिएगा, जैसे कि जी आपने ये हाथों को इस तरह जोड़ा उंगलियों जी को, और देन डू उसके लाइक साथ दिस, जी क्योंकि जब तक अगेंस्ट रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगा मसल में जी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इस चीज को आई मीन यू शुड ऑलवेज बियर इन माइंड, the exercise, whatever you do, if it is being done with the resistance, then only it will be useful. If you are doing like this, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम स्माइली बॉल यूज कर रहे हैं, वो ठीक है, उसको करने में नुकसान नहीं है, पर हमारा जो पर्पल है वो पूरा उससे सॉल्व नहीं होता। उससे यू आर जस्ट हैविंग वन साइड ऑफ मूवमेंट, जो इस जी साइड की मूवमेंट वो नहीं हो रही। जैसे अपने डॉक्टर साहब ने एक वो स्प्रिंट दिखाया था जिसमें पीछे स्प्रिंग लग के, तो उसमें यूं करके आप वो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कंप्लीट एक्सरसाइज पॉसिबल है, आगे के लिए भी पीछे के लिए भी। जी बॉल में सिर्फ एक साइड की है। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे यूं अपने यूं करके यू देन डू लाइक दिस, तो जी ये जो स्ट्रेचिंग है दिस आल्सो विल हेल्प। आप उसके बाद दीवार अपने टेबल पे आपके उंगलियां मुड़ी हुई हैं, तो आप दूसरा हाथ का सहारा लेके पंजे को पूरा सीधा करें और उसके बाद फिर उस पर प्रेस करें। या जैसे मैं दिखाता हूँ, दीवार को इस तरह से करके करने की कोशिश करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं। और जहाँ पे जिनके कंधों में प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे आप बैठते हैं तो सोफे पे बैठें और हाथ को ऊंचा करके रखें, जिससे कि जिनका शोल्डर है वो एक्टिवेट हो और उनकी हैंड के ऊपर वहां उसके पे लिए रहे। फिर वो हाँ, शोल्डर पुली भी यूज कर सकते उसके हैं। अलावा पुल्ली यूज करें, या नहीं तो एक और सीधा तरीका है, जैसे आप नहाते हैं तो नहाने के बाद टॉवल लेके पीछे से लेके ना एक नीचे से यूं जी इस तरीके से डायगनली दिस यू कैन डू। जी मतलब दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं आप। ये होम केयर प्रैक्टिस है सर। हाँ, और ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। रिपीटिशन ऑफ दीज एक्सरसाइजेज इज रिक्वायर्ड। अब जैसे घर में लेडीज के लिए काम करना होता है कि मटर छीलना, तो जो आपको कहेंगे मटर छीलो, 5 मिनट में देखो आपने कितने मटर छीले, तो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ तो वो हंसने लग जाते हैं कि आप तो काम बता रहे हो। मैं कहा काम नहीं, ये एक्सरसाइज है। तो उस टाइप की भी एक्सरसाइज को हमें, अगर हम उसको मन लगा के करते हैं, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग गुड रिजल्ट। तो जो एक्सरसाइज है उसको एक टास्क नहीं बनाना, ये समझ के कि ये तो बड़ा मतलब झमेला है या कुछ है। जब भी आप उसको झमेला मानते हैं तब दिक्कत होती है। और अगर आप उसको ये मानते हैं कि मेरे को अपनी विद डिटर्मिनेशन के साथ कि मेरे को ठीक होना है, जैसे आपने आई मीन पिछले उसमें उसने आपने गुलवेज की वीडियो बहुत देखी है, सब लोगों ने बहुत सराहा है भाई। कई लोग तो मेरे पास आई मीन पेशेंट के फोन आते हैं, हम उसकी वीडियो देख देख के बहुत प्रोत्साहित होते हैं। पर मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, उस लड़के ने इतनी मेहनत करी, जितनी दवाई के साथ साथ इतनी हड़दोई से आता था, पर एक दिन भी उसकी दवाई मिस नहीं हुई। और जितनी एक्सरसाइज उसको बोली जाती थी वो उसको पूरा रेगुलर उतना करता था। उसने कभी भी हार नहीं मानी, उसकी खुद जिद थी कि मेरे को ठीक होना है और मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। तो वो एक जो इंस्पिरेशन है, ये आप सबको बना के रखना है कि आपको देयर इज अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, रादर देन कि अब तो खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। जहाँ पे आपकी ये सोच आनी शुरू की अब तो मैं बेकार हो गया, मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हो गया, या अब यहाँ पे एक चीज और है जो कुछ लोगों को लगता है कि एल्डरली लोग हैं कि अब हम डिपेंडेंट हो गए, अब हम अपने घर वालों पे भार हो गए हैं। या तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो क्या आप उनका साथ नहीं दोगे? तो कहते देंगे। तो मैं कहा फिर जब आप उनका साथ दोगे, आप उनके लिए करोगे, ऐसे कोई आपके लिए कर रहा है तो आप उसको बुरा ना मान के ये इस बात को करें कि हमें जल्दी ठीक होने में हेल्प करें। उसके लिए दवाई, एक्सरसाइज, पॉजिटिव माइंड और एनवायरमेंटल फैक्टर, उन सब चीज़ों का समावेश
you need a combination of all those things together to get the best of results. इसमें कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे हमने शायद डॉक्टर नकुल पराशर के साथ भी पहले डिस्कस किया था कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे हमारे पेशेंट्स हैं वहाँ पे फिजियोथेरेपी अवेलेबल नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, और जैसे कुछ बताया कि जो कुछ वो अधपके मतलब हाफ पेक्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कहीं पे असिस्टेंट थे तो उन्होंने घर आके वहाँ पे अपना शुरू कर लिया विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज। तो वो जो देते हैं कि लाइक टेंस मशीन लगा दी और उनको कहते हैं बस यही ये, क्योंकि जहाँ पे वो एमएलडी का लेवल लगता है, एएलएस का लेवल लगता है, तो वो आधी से ज्यादा कम्युनिटी वो उसको हाथ लगाने से मना कर देती है। वो सब चीजों को कहती है बिकॉज उसकी वजह से इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसका कुछ करना ही बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम सबको, खुद को, पेशेंट के अटेंडेंट को और डॉक्टर को ये बात मानना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं, ये चैलेंज है, हमारे लिए चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है, और हम ये चैलेंज सब मिलजुल के फेस करेंगे और इस पे विजय पाएंगे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। अगर हम इस उसके साथ चलेंगे तो आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू विन द रेस एंड वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एक चीज और जहाँ पे आई मीन डॉक्टर वरुण वालिया, आपने वो जो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए थे फॉर स्पीच थेरेपी के लिए, वो एक आई मीन इजीली अवेलेबल टूल्स हैं, वो आप अपने जिन जिन को बल्बर पाल्सी की प्रॉब्लम है, जिन जिन के ऑनसेट पे ये प्रॉब्लम है, वो आप ये कितने का आता है वो सर मुश्किल से 2 या 250 रुपए का है। हाँ, इट्स अ वेरी चीप वन। तो आप उसको एक बारी ऑर्डर करके वो घर पे मंगवा लीजिए और उसके थ्रू एक्सरसाइज करिए। और अगर आपका कोई स्पीच थेरेपिस्ट है तो उनसे आई मीन सलाह लेके आप उसको यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज सीखने के बाद कभी भी आपको जरूरत लगती है यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर वालिया ऑल्सो एंड ही विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, गाइड यू कि इसको किस तरह से यूज करना है। कैन आई इंटरप्ट प्लीज? सॉरी। यस यस यस। डॉक्टर वालिया, आप जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आउटसाइड दिल्ली हैं या आउटसाइड इंडिया हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर पाएंगे इन लोगों को अगर कैसे, है ना? तो सर आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना डिटेल्स शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में और एंड में भी। और 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक बार डॉक्टर गुप्ता फिनिश कर ले, फिर हम, हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं वो लेंगे इसके बाद। यस डॉक्टर गुप्ता सिंह। हाँ ठीक है, ये आई एम हैप्पी कि पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड देयर आर क्वेरीज। तो इसका मतलब है कि लोगों को मैसेज ठीक जा रहा है, उनको कुछ समझ में आ रही है, तभी इनकी क्वेरीज हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी कोई लेक्चर दे रहा हो तो बाद में पूछता है एनी क्वेश्चन, तो नो क्वेश्चन में या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी तो ये हमारा पर्पस ये नहीं, मजाक की बात थी, बट द अल्टीमेट एम इज कि हमने और डॉक्टर पराशर ने जब ये हमने एक तरह पढ़ लिया है कि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो वी विल मेक श्योर कि ऑल पॉसिबल थिंग विल डू। और जहाँ तक हमसे कोशिश हो सकती है, जिस लेवल पे भी हम उसको कोशिश, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, करते रहेंगे। इसमें जो फिजियोथेरेपी का एक ये बात, हम स्पीच थेरेपी के लिए वो टूल्स का बात कर रहे थे, दूसरा एक ओम का उच्चारण अगर करा जाए रेगुलर, आप उसको, दूसरी बात होती है कि आई मीन पेशेंट को जो भी कोई गाना है, कोई शब्द कीर्तन है, कोई भजन है या कोई भी पोएम है, कुछ भी, वो उसको बोलने की कोशिश जरूर करे। चाहे बोल पाता है नहीं बोल पाता, उसको बोलें, शीशे के सामने बैठ के बोलें, बारी बारी बोलें, तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। पर लोग वो कहते हैं मेरे बोला ही नहीं जा रहा, तो वो बात मैं कई बार पेशेंट के, जैसे अभी न्यू पेशेंट होता है तो मैं उससे वीडियो कॉल में उनका नाम पूछता हूँ, तो नाम तक बताने से पहले ही वो जो उनका अटेंडेंट होता है वो बोल देता कि ये इनको इनसे तो बोला नहीं जाता। तो ये चीज एक जो पेशेंट के अटेंडेंट की बात है, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बात अगर पेशेंट से कही जा रही ना, तो कोशिश करें कि पेशेंट ही जवाब दे। अगर जवाब नहीं दे पा रहा, आपने असिस्ट करना जरूर करें, परंतु बहुत बारी मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली कि पेशेंट के जवाब देने की कोशिश कर भी रहा होता है, तो वो जो अटेंडेंट है वो पहले नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकती, ये तो इनसे तो बोला नहीं जाता, इनको तो हमें ये हो गया,
तो उससे पेशेंट के सामने बारी बारी ये कहना भी ठीक बात नहीं है। आप उनको कहें कि हाँ ठीक है, कोशिश करो, नहीं होगी तो मेरे को पता चल जाएगा, परंतु आप पहले ही अगर आप पेशेंट के सामने ये बोलते हैं तो ये पेशेंट को एक नेगेटिविटी जाती है विच इज नॉट गुड। और दूसरी चीज मैं सुनना चाहता हूँ कि पेशेंट की आवाज का एक्चुअल किस पोजीशन पे है, मेरे को वो भी नहीं पता चल पाती। कि अगर हम जब जिनसे ऑनलाइन पेशेंट से बात करते हैं तो ये चीज दिक्कत आती है कि वो बताते नहीं है, और जो बताना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो उनका अटेंडेंट मना कर देता है, बोल देता है कि इनसे नहीं बोला जाएगा। तो और ये चीज आप अपने आप में जितने भी केयर गिवर्स हैं, ये उनके लिए है कि आप प्लीज कोई भी चीज को नेगेटिव फॉर्म में मत उसको प्रोजेक्ट करें कि ये तो इससे होता ही नहीं है, होगा नहीं। आप वो करो कि ये अभी कोशिश करते हैं, लेट अस सी। आप नहीं होगा कोई बात नहीं, पर कोशिश करने से कभी भी मत रोकिए पेशेंट को, बल्कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो कोशिश करें, बोलने की भी, हाथ चलाने की भी, जिस चीज के लिए भी है। अगर आपको पता लग भी रहा है कि उनको मुश्किल हो रही है, उस मुश्किल को फेस करने दें, और ना कि उनके हाथ में वो चीज पकड़ा दें कि जैसे आपने उनको हाथ में दिक्कत हुई तो उनका हाथ छोड़कर आपने उनको खिलाना शुरू कर दिया। वो उसमें क्या होता है, वो पेशेंट की अपने आप को फिर एक बड़ी दयनीय स्थिति में पाता है, और वो उसके जो मेंटल साइकी पे भी वो उसका जोर डालता है कि आई हैव बिकम डिपेंडेंट। तो उनको कोशिश करने दीजिए कि 2 मिनट की, 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट देम मेक द एफर्ट विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि जहाँ पे हमने उनको कोई भी चीज एट कंफर्ट देना शुरू कर दिया, तो फिर उनकी जो काम करने की क्षमता है और काम करने की वो फीलिंग है, वो भी कम होती आती है। वो कम होने के साथ साथ उनका जो अपना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी कम होता है, और वो सेल्फ एस्टीम भी अपने आप को कम वो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये साइकोलॉजिकली और उसके लिए फिजिकली दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट का साथ उस तरीके से उसको हेल्प करें कि वो अपने आप को हेल्प करने के काबिल बनाए, ना कि हमको उसको हर चीज उसको वहां पे देना शुरू करें और वो बिकम एब्सोल्युटली मतलब जिसमें अब हम लोग को लगता है मैं किसी काम का ही नहीं रह गया। ये फीलिंग नहीं आने देनी हमको पेशेंट के दिमाग में। इसके लिए मैं बारी बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने हर पेशेंट से और हर पेशेंट केयर गिवर से कि इस टाइप की फीलिंग को अवॉइड करें, जहाँ पे पेशेंट को किसी भी तरीके का ऐसा हल्का सा भी आभास लगे। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। बल्कि जहाँ पे किसी को दिक्कत आती है तो दे कैन टॉक टू अवर साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। उनमें कि उनको कहीं पे भी परेशानी लगती है कि हमें किस तरह का हैंडल करना है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू टॉक टू अवर साइकोलॉजिस्ट। फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम टू टॉक टू अवर फिजियोथेरेपिस्ट। आप अपनी प्रॉब्लम उनको वीडियो में दिखा के उनको आप भेज सकते हैं, तो वो आपको एक्सरसाइज का एक वो पैटर्न किस तरीके से करनी है, अगर आपका वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनसे भी बात करके उनको समझाया जा सकता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, किस ढंग से करना है। तो हमारा मेन एम, जैसे हमने शुरू से कहा कि यही है कि पेशेंट वेलफेयर इज आवर मेन एम एंड सोलो एम। तो उसी के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे आगे भी। अगर अभी जो इसके बीच में आपके जो क्वेश्चन थे डॉक्टर संकेत, उनको ले लो, फिर विल डिस्कस फर्दर। वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अब कमिंग इन। एक सबसे पहले ये बनीता क्या नाम, बनीता बाना, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और पूछे अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं नमस्कार, कैसे हो? सूर्यकांत बिश्नोई फ्रॉम ओडिशा। हाँ सूर्यकांत, कैसे हो? जी सर, अच्छा हूँ सर। अभी तो पढ़कन बंद हो गया थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। लेकिन सर मेरा जो स्पीच है ना, थोड़ा नाजल स्पीच हो रहा है सर। नेजल हो रही है, नेजल स्पीच हो रही है। हाँ सर, मैंने हो रहा है, कभी कभी क्लियर हो रहा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जब सुबह सो के उठते हो तब में और शाम के समय में कुछ फर्क आता है बीच में? हाँ सर, सुबह माने ज्यादा प्रॉब्लम होता है और
हाँ, शाम को थोड़ा माने दिक्कत कम होता है। कम हो जाता है, ठीक है। हाँ अच्छा, सर, और एक बात है कि मेरा सुबह जब उठता हूँ ना सर, मेरा जो नेक फॉल है माने गर्दन का जो झुकना वो बहुत ज्यादा होता है सर। नहीं, दोबारा बताएं, समझ नहीं आया। माने मेरा जो गर्दन का जो नेक फॉल है गर्दन ना का, सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है सुबह का टाइम। ये दर्द ज्यादा होता है? नहीं माने नीचे ऐसा सर नीचे हो अच्छा, जाता है। ठीक है। हाँ हाँ, वो मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में ज्यादा होता है सर। ठीक है। और इवनिंग टाइम में उतना फील नहीं होता है, बॉडी थोड़ा फ्री रहता है। ठीक है, और चलो। सर जब गर्दन नीचे हो जाता है ऐसा, हम्म। मेरा कमर पीछे हो जाता है सर। आप कितना मोटा तकिया लेट के सोते हो? मैं सर बिना तकिया का सोता हूँ सर। अच्छा। और जी एक इसमें जो मैं अभी वो गर्दन की बात करें, डॉक्टर वाली भी बताएंगे। बाकी जो जहाँ तक आवाज का है ना, उसके लिए तो एक तो क्या है कि आप मुंह सूखता तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, रात को थोड़ा सूख जाता है सर। रात को सूखता है, ठीक है, हाँ सर, रात को ना। मैंने हाँ। रात को जब मैं सोता हूँ हम्म। तो 2-3 बजे मेरा नींद थोड़ा खुलता है। उस हम्म। टाइम क्या होता है, मेरा मैंने माउथ जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है हम्म। और उसके चलते वो सूख जाता है। एक तो सबसे पहले रात को सोने से पहले आधा कप चाय पी के सोया करो, थोड़ी सी अच्छा। चाय, ठीक है। जी सर। चाय पी लो। और दूसरी चीज जो इसकी आवाज के लिए ना, इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ओम का उच्चारण कंटिन्यूअसली करो उसको, जी सर। बीच में रुक रुक के। और एक जो एक्सरसाइज है इसकी बताई थी मैंने पहले, ये मेरी तरफ देख के देख लें। जो ये टंग की एक्सरसाइज करो जरा। अच्छा सर, मैंने कैसा सर? हाँ, ये ऊपर ऊपर भी, टंग ऊपर, अपर लिप के ऊपर भी लेके जाओ। अभी ऊपर नहीं लेके जा रहे आप? ऊपर ऊपर। सर ऊपर लेके जाऊं? हाँ, हाँ, ऐसे। पूरे चारों तरफ घुमा। चारों तरफ घुमाओ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सर ठीक, हाँ, कोई बात मैंने नहीं। एक होता ये, है सर, लेकिन उतना प्रॉम्प्टली नहीं हो पाता है सर। हाँ, अब नहीं हो पा रहा और आप कर नहीं रहे। जी जी सर। अभी यही बात मैं बताना चाह रहा था, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं हो रहा और आप उसको छोड़ रहे हो, उसको छोड़ना नहीं है, करते जी रहना सर। करते रहना करते रहना। तो वो जानकी भी आ गई बीच में। हेलो जानकी। तो ये चीज जरूरी है कि आपको वो जो चीज छोड़नी नहीं है, करनी है रेगुलर। धीरे धीरे करते रहोगे तो उसमें फर्क आ जाएगा। आप बाकी जो नेक जी की सर। प्रॉब्लम, डॉक्टर वालिया को जब बताना चाहेंगे उनके लिए। जी, ये पिल्लों की लगा रहे हैं रात को, इस वजह से ज्यादा समस्या हो सकती है सर। हाँ, आपको आपको छोटा एक वो रखना चाहिए, जी, चाहे टॉवल रोल करके रखें या पूरी कुछ भी। रात को विदाउट सपोर्ट वो हो जाते हैं, इसलिए मसल सुबह हाँ, काम नहीं करती है। अच्छा ये अच्छा। इसीलिए मैंने आपसे सर पूछा कि आप मैंने कितना। यू हैव टू सपोर्ट। मैंने हाँ, पतला तो सा अब आप, पिलो रंग सर। पतला सा पिलो हाँ, रख सकते हैं, किसी और चादर को फूल करके लगा सकते हैं। जी सर। ठीक है, और जी लगा सर। कर रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और सर के नीचे नहीं लगाना है, गर्दन के नीचे लगाना है। गर्दन के बीच में, यहाँ जी पे। जी सर। लोग क्या सर करते और हैं, एक सर बात, के जो नीचे लगाते हैं। मेरा जो कमर सर ज्यादा पीछे हो रहा है सर। पीछे इन द सेंस दर्द होता है? हाँ दर्द भी घुटने का होता है नहीं सर। पीछे। कोई बात नहीं, वो अब मेरे को लिख के भेजना, उसके मैं मेडिसिन में जी, बीच में देख लूंगा, ऐड कर लूंगा। ओके ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये नाम ऐसे पढ़ा नहीं जा रहा, बॉलीवुड स्पेशल लव। आप प्लीज, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं बारुल इस्लाम, BPM 128। अच्छा अच्छा अच्छा, बारुल इस्लाम, हाँ बोलो।
सर मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से दवा नहीं ले पाया इस बार, हाँ। लेकिन मैं अभी ठीक हूँ सर, पहले से मतलब बेहतर हूँ। मैं सर एक थेरेपी कर रहा हूँ, जो हाँ। थर्मल एक्यूप्रेशर थेरेपी है सर, मैसेंजर थेरेपी, सेराजेम सेराजेम सर। सेराजम सेराजम पता है मेरे को, हाँ। क्या सर मैं वो कर सकता हूँ? देखो, सेराजम थेरेपी आप कर सकते हो, करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हाँ जो एक तो इसका बताया कि आपका जो पार्ट ट्रीटमेंट का पार्ट है वो उसमें इसेंशियल है, तो मेडिकेशन ज़रूरी है। और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी का पार्ट, वो प्रोवाइडेड वो फिजियोथेरेपी ठीक हो रही हो तो। अगर फिजियोथेरेपी ठीक, सर, हाँ, इसका इस बात का ध्यान रखना कि आपने उनको वो करें। और सेराजम थेरेपी से अगर आपको कुछ लगता है रिलीफ मिल रहा है तो यू कैन कैरी ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। हाँ सर, मैं जो आप अभी दिखाया सर सारे मैं कर रहा हूँ सर, हाँ, सारी फिजियोथेरेपी मेरे से हो रहा है अभी। वेरी गुड, पर इनको करते रहना, छोड़ना नहीं है। अच्छा हाँ, और सर एक बात और मेरे को जानकी को देख के याद आ रहा है कि वो वहां पे जो पहली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो तो करते हैं, फिर कोई नई प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वो एक्सरसाइज करते हैं, पिछली वाली एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। ये नहीं करना। ओके सर। ठीक है। हाँ। ओ, थैंक यू। और थैंक यू। सर एक हाँ, क्वेश्चन है सर, बोलो। मेरा जो बाएं हाथ में सर जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, हम्म। लेकिन अभी वो बाएं वाला उंगली मेरा एक्टिव हो रहा है, जैसे ठीक है। मैंने पहले नहीं चल रहा था सर, अच्छा। अभी वो चल रहा है। लेकिन दूसरा दाहिने हाथ वाला नहीं चल रहा है, थोड़ा वो कम चल रहा है। वो भी आप, वो ठीक हो जाएगा। वो भी आप उसके लिए पूरी एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर उसको वो करते रहो, तो वो ठीक रहेगा उसको। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्कार। ओके, नेक्स्ट एक ये परमीत मानी झा, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार कैसे जी। हैं आप? ठीक है, तो पहले से तो ठीक है, लेकिन हमको ये गर्दन जो है ना, गर्दन बहुत झुक जाता है, ये दर्द करते रहता है, हम्म। और कमर में ताकत नहीं लगता है, चल नहीं पाते हैं, नहीं तो और चीज में बहुत बढ़िया है। बोलने में भी बहुत फायदा हुआ है, पहले जैसा लटपटा के नहीं बोलते हैं, वेरी फ्रेश गुड। आवाज आता है। जो फिजियोथेरेपी आप मुंह का दिखवाए हैं वो हम हर हमेशा करते हैं, क्योंकि वेरी वेरी गुड। न्यूरो साइंस में हमको सिखवाए थे, तो उससे आवाज बहुत अच्छा हो गया। पहले तो हम बिल्कुल बोल नहीं पाते थे, वेरी लेकिन गुड। अब बोलने में दिक्कत नहीं होता है। हम्म। केवल ये गला जो है ये परेशान करता है, और उसके बाद ये माथा में ना जलन जैसा देता है, ठीक है। जलन जैसा देता है। और उसके बाद जाकर के पैर में चलते हैं तो कभी कभी फरकन पहले जैसा नहीं होता है, बहुत कम गया, लेकिन फर फर करते ही रहता है। कभी कभी, हर हमेशा नहीं होता है, कभी कभी फरफराते रहता है। वीकनेस कमर में और पैर में बिल्कुल बहुत वीकनेस लगता है। हाँ, पैर का एक्सरसाइज तो उठाने बैठाने वाला बहुत करते हैं। चलो, अब इसको इसके तरफ हम ये आप नोट कराना, आपकी दवाई में इसको और चेक करेंगे। बाकी जहाँ तक आपकी गर्दन का दर्द है ना, तो आप भी रात को सोते समय तकिए का कैसे इस्तेमाल करते हैं? एकदम पतला तकिया लेते हैं। पर वो गर्दन के नीचे रखे, सिर के नीचे नहीं। और हाँ, गर्दन, सिर के नीचे नहीं, गर्दन के बीच में, मतलब जो गैप है ना, ये इस गैप हाँ के हाँ, यहाँ पे रखिए थोड़ा सा। और एक एक डॉक्टर अरविंद, आपको अभी जी, एक्सरसाइज भी बता दीजिए, नेक की एक्सरसाइज बता दीजिए इनको। और देखिए एक्सरसाइज ये है कि इसको प्रेशराइज करना अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि आपकी लेंथ अच्छे से होल्ड भी हो पाएगी और आपके बोलने पर भी अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, फ्रंट एंड बैक। पर वो इसमें गर्दन सीधी रहनी चाहिए, ये यूं नहीं जाए अपोजिट और डायरेक्शन में यूं नहीं करना जाए। है। हाँ, मतलब इसका एक तरीका और गर्दन मैं सीधी बताता हूँ। रहेगी, हाथ सीधा रहेगा, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जोर लगाएंगे। इसका तरीका एक और है कि आप ये यूं जैसे गर्दन सीधी रख के जी, गर्दन से पीछे करें और हाथों से आगे दबाएं, मतलब अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वही वाली बात है। ऐसे में जी, भी और ऐसे में गर्दन टेढ़ी नहीं होनी हमने चाहिए। आपस में उसको रोकना है, तब जाके हाँ, मसल बूस्ट होगा आपका।
ठीक है सर इसमें इनमें जैसे नेक के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें कॉलर का क्या रोल है और क्या सजेस्ट कॉलर करेंगे का आप ये है कि पेशेंट्स जैसे हमारे एमएनडी के कुछ पेशेंट ऐसे हैं वो अपनी नेक को होल्ड नहीं कर पाते थे, को? हाँ। तो उसमें नॉर्मली सर्वाइकल कॉलर को सजेस्ट किया जाता है। हम्म, सर्वाइकल कॉलर जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के हमारे एमएनडी पेशेंट के लिए स्टैटिक कॉलर यूज किया जाता है, जो कि हमने स्टैटिक पहले भी कॉलर, बताया था। ये सब आप लोग जिसकी ध्यान फोटो से दिखाई सुने, स्टैटिक कॉलर जरूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए, सर्वाइकल कॉलर नहीं। सर्वाइकल कॉलर उतना यूजफुल नहीं रहेगा, स्टैटिक कॉलर यूजफुल रहेगा जहां पे भी नेक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो नेक बेंडिंग होती है ना, फॉरवर्ड गिर जाती है, ऊपर खड़ी नहीं कर पाती, उनके लिए स्टैटिक कॉलर यूज करना है। नेक्स्ट। हाँ जी। तो अब थैंक यू परमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जानकी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, so you said like do some exercises with the right hand which is functioning, but while she's trying to mix like wheat flour and all, she was continuously feeling pain with the right hand. पेन, And ओके, so, and because of that, she's getting scared to do anything with her right hand. And her friend, after doing physiotherapy to her left hand, uh, now there was slightly muscle weakness as observed recently on the left hand, right hand as well, ओके। and unable to lift her hand. So physiotherapy side, how much they can suggest on it? Because Well, as you said, like when she's trying to plow the आटा, she gets pain. जब वो पेन करती है, उसके बाद छोड़ देते हो? sure, she is stopping to do like completely. She is still doing. नहीं, this is what I said in your case. What you do the moment you see some inconvenience, you leave it. This is what you have not to do. You need to carry on. I mean, soon you will overcome that. Okay. That is the one thing. This is a thumb rule. I mean, a golden rule which we all must understand. In this particular problem, जहाँ पे आपको किसी भी काम करने में दिक्कत होती है, उसको दिक्कत को थोड़ा बर्दाश्त करना, बहुत ज्यादा छोड़ दीजिए। पर आप जरा सा दिक्कत को आपने छोड़ दिया, उसके बाद करा ही नहीं, तो फिर वो दोबारा करने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए उसको करते रहना। ठीक है। आपका जो व्हाट यू आर सेइंग कि शोल्डर में जो वीकनेस आ रही है आफ्टर फिजियोथेरेपी, वो अभी या तो आप एक्सटेंसिवली कर रहे हो उसको, तो थोड़ा ग्रेजुअली कर टाइम को और उसको करके स्पेस देके बताना। डॉक्टर वालिया, वुड यू लाइक टू से समथिंग? शोल्डर की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो तो डॉक्टर देखना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं वो ये तो ऑलरेडी वहाँ पे आप फिजियोथेरेपी भी कहाँ पे करा रहे थे? भुवनेश्वर पे कर रहे थे। भुवनेश्वर में। एक बार अरविंद सर के बात किया अभी हाँ किया था, हाँ किया था, मैंने पहले बात करवाया था ना जी। उसका टाइम हम जो साउथ में है ना, इसलिए नॉर्थ आने का थोड़ा तकलीफ है, उधर रखने के लिए थोड़ा। You at home fully also, हाँ, shoulder fully and all she was unable to do. Okay. फिर वो unable does not mean that she should not do. Hmm. The only problem is wherever you find it is difficult or unable and you leave it, this is what not to be done. I am repeated again and again. Keep on doing slowly, and it will you'll start doing it. The biggest problem is, I'm sorry I took your name. Reason being, wherever you find little difficulty, little problem, you leave it. Don't do that. Okay. Baki, for your, I mean, this shoulder and all that, get in touch with Dr. Walia. He'll advise you accordingly. Right? And for while walking also, sir, not able to do walk at a time for a long, more than 10 minutes and all. What happens? She gets pain or what happens? Her walking style is getting changed. Okay. She gets tired or any cramps or something like that? No, she's feeling pain at the back and walk style gets changed. Okay, you I mean just mention it in the next time for the medication. I'll give some medicine for that so that she should be able to take at that very moment and then carry on. But again, don't stop walking.
Next. Okay, thank you, Janki. And the next question is from Atharv. You can please unmute yourself. यस सर. गुड आफ्टरनून सर. Afternoon. Good afternoon. मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर. मेरा पेशेंट ना जब खड़े रहते हैं ना, पहले वो खड़े रहते थे, अभी वो कमर होल्ड नहीं कर सक रहे, मतलब कमर पीछे जा रही है उनकी. कमर पीछे जा रही है, तो मसल जो है उनका डीजनरेटिंग में जा रहा है. उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है. हाँ हो रही है. ब्रीजिंग अच्छे से करते हैं वो. ब्रीजिंग 15 सेकंड अच्छे होल्ड से तक करते हैं. और बिलिटरी रीजन का क्या है? हिप्स. सॉरी सर. हिप्स के लिए क्या कर रहे हैं? हिप्स के लिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन साइड लाइन में विथ थेराबैंड. हाँ अभी थेराबैंड रेजिस्टेंस. कितना टाइम हो गया इनको? अभी फिलहाल तो 1 महीना से मैं कर रहा हूँ. उसके पहले करते थे वो, ऐसे बोल रहे थे हाँ. उनके हाँ. रिलेटिव्स. हाँ. लेग रेस करती हैं? सॉरी सर. टांग उठाते हैं सीधी? लेग रेस हाँ करते हैं? यस सर. यस एसएलआर करते हैं. यस सर. एसएलआर पूरी करते नहीं हैं. उठा सकते, मतलब विथ सपोर्ट उठाते हैं वो, मतलब असिस्टेड. ओके. और मसल स्टिमुलेटर हाँ स्टिमुलेशन चल रहा है सर. फुट ड्रॉप के लिए चल रहा है. कहाँ चल रहा है? फुट ड्रॉप के लिए चल रहा है सर. रिस्ट ड्रॉप के लिए भी चल रहा है, और हैमस्ट्रिंग के लिए. विद फेरेटिक और गैल्वेनिक? गैल्वेनिक. गैल्वेनिक. यस फेरेटिक पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है? सर. नहीं, फैराडिक पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है. फुट ड्रॉप के लिए तो नहीं मिल रहा है. हैमस्ट्रिंग पे फैराडिक कर रहा हूँ. और ये अपना बिलोटाइड रीजन के लिए अपर हिप? अपर लिम के लिए भी, रिस्ट ड्रॉप के लिए भी गैल्वेनिक. अपर हिप. अपर सॉरी हिप. Hip. But लोअर बैक? हाँ लोअर बैक. नो सर, लोअर बैक के लिए नहीं चल रहा है स्टिमुलेशन. नहीं, लोअर बैक के भी ऐड कीजिए. कुछ दिन बाद यू रियलाइज मसल इज बेटर. ओके जी. ठीक है. ठीक है सर. और उनका ना स्लाउज पोस्चर भी हो रहा है सर. स्लाउज बैठते हैं वो, तो उनका उसके लिए भी करेक्शन कर रहा हूँ, पोस्चरल करेक्शन, बट स्टिल वो स्लाउज पोस्चर में ही बैठे हैं. ओके. तो उसकी वजह से उनका लंग वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, और सांस लेने में तकलीफ होती है उनको कभी कभी. सांस लेने में तकलीफ होती है. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या हो रहा है? करवा रहे विथ होल्ड क्या सर. करा डीप रहे हैं? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. हाँ. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. डीप ब्रीथिंग. बैलून ब्लो कराइए उसे. हाँ वो नहीं करा है सर, लेकिन वो में इतने जोर से स्पायरोमेट्री चल रही है सर. इंसेंटिव स्पायरोमेट्री. ओके. उसमें वो एक ही बॉल पूरा ऊपर तक ले जा सकते हैं. अपनी एक्सपिरेशन में वो को करते कितना हैं. बाहर निकाल लेते हैं? हाँ सर. अपनी टंग को बाहर निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं. ठीक है. इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कराइए तो इनका लंग का प्रेशर भी ठीक हो जाएगा. और ज्यादा लिटा के ना रखिए और हाँ, उल्टा लिटा के जरूर लिटाएं. अच्छा ठीक है. राइट. ठीक है. ओके. Right, thank you. Okay, This thank was you. a very good example of, I think this was the best interaction between two physiotherapists. How an integrative approach, an open-minded approach can help all our patients. इसी तरह आप जहां पे भी आप लोग कहीं पे भी फंसते हैं, अटकते हैं, आप प्लीज डॉक्टर वालिया से कांटेक्ट करें. उनका नंबर हमने चैट बॉक्स में पिन कर दिया है. आप चाहें तो उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं, चाहे तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी उनके बात बारे में करा बात सकते हैं. करवा के उनकी हेल्प ले सकते हैं. ही इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल डॉक्टर, जस्ट लाइक अस, एंड ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय. So next question is from Sneha Rani. Please, ma'am, unmute yourself. Hi everyone. Hello sir. Hello. डॉक्टर, माय हस्बैंड इज लाइक अनूप कुणाल, बट वो एक्चुअली क्या करते हैं, मतलब उनके दिमाग में है कि एक्यूपंक्चर इज द बेस्ट थेरेपीज फॉर MND. इज इट ट्रू? I want to know. Well, it is of anybody's belief is that we are open to anything and everything whichever is helpful for the patient. That is why we keep an open approach. एक्यूपंक्चर के अपने रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्रोवाइडेड जो एक्यूपंक्चर करने वाला है ही इज एन एक्सपर्ट. क्योंकि ये जो कुछ साइंसेज ऐसी हैं जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, बहुत लोग
करते हैं, बट दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपर्ट इन दैट। तो वहाँ पे जो एक मतलब इनकी एप्लीकेशंस हैं, अगर तो एक्सपर्ट हैंड से हो रही है, देन आई कैन बी आई मीन होपफुल दैट इट विल बी गुड। पर अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ आई मीन दिस पर्टिकुलर डिजीज, then it can be, I mean, a little difficult to say that कि it would be effective. Same thing is about the मालिश वाला। मालिश वाला भी करने में जो मालिश करते हैं वो भी मालिश ठीक हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हम मसाज करना तो एक कॉमन चीज को, मतलब आप हाथ हिला रहे हो, तेल लगा दिया, वो लगा दिया, बट उसको ठीक ढंग से करना एक सबसे बड़ा पॉइंट है। और ये इट्स ए चैलेंज टू गेट अ गुड एक्यूपंक्चरिस्ट प्रॉपर। we have acupuncturist also with us. He is a MBBS doctor, and from there he has turned into acupuncture. So he knows the basic science, basic anatomy, physiology, and pathology. And then when he uses that, it has a different result. But एक जो खाली उसमें किसी के साथ बैठ के आपने वो सीखा हुआ कि यहाँ पे नीडल लगा दो, वहाँ नीडल लगा दो, तो वो थोड़ा सा उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और जहां तक उनका कुणाल जी को बोलो कि खाली एक्यूपंक्चर ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। अगर ये बात होती कि खाली वही है, तो फिर अब तक तो इंटरनेट भर चुका होता, बिल्कुल। अब तक तो इंटरनेट भर चुका होता उससे। इसलिए मैंने अभी भी ये कहा, अभी इंटरनेट भरा हुआ है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम उसको उस नैरेटिव को भी चेंज कर रहे हैं कि इसका इलाज मुश्किल है, पर ऐसा नहीं कि नहीं है। एलोपैथी में नहीं है तो कहीं और है, कहीं और नहीं तो कहीं और है। और जब हम सब मिलके अगर वो कर लें तो उसका इलाज डेफिनेटली संभव है। और काफी हद तक हमारे आपने केसेस हमारे देखेंगे जहाँ पे रिवर्सल भी हुए। तो ये सब तभी मुमकिन हुआ जब हम पूरी ओपन अप्रोच लेके चलें। तो उनको कुणाल जी को बोलिए कि खाली एक्यूपंक्चर पे वो अगर आप उनका पूरा, मैं उनके फेथ को तोड़ना नहीं चाहता, उनका विश्वास है, अच्छी बात है, प्रोवाइडेड कि वो बट मुझे कुछ मुझे कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ दिखता नहीं है ना, मतलब बिकॉज 3 years in 3 years completely like स्टेज काफी एडवांस हो चुका है उनका एमएनडी का, तो मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा है। कब से करा रहे हैं एक्यूपंक्चर? वो कंटिन्यू जैसे ही पता चला था उसके बाद से ही कंटिन्यू लेते ही रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 तो ले रहे हैं। फिर लेकिन मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। फिर आई थिंक आई वुड से कि लाइक एनफ इज एनफ, कि उसको छोड़ के वी शुड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैं एक्यूपंक्चर के खिलाफ नहीं या ना किसी उसके, बट मतलब अगर उसका 2.5 साल से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और तकलीफ बढ़ रही है तो हमें दूसरी ऑप्शन को जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मैं अरविंद बालिया डॉक्टर से मतलब बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे जो मैं फिजियोथेरेपी मतलब करवा रही हूँ अपने क्लस्टर में, ही जस्ट सिमुलेट कर रहे हैं मसल्स को। मुझे नहीं पता कि वो क्या और करना चाहते हैं, टेंस कभी कभी लगाते हैं, बट आपका जो अभी वीडियो मैंने देखा वहाँ जो टेंस का जो एक्टिविटी था, जस्ट मतलब वो काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वैसा तो मैंने नहीं देखा कि वो कभी ऐसा यूज कर रहे हैं। और एक्यूपंक्चर जो करता है वो एक टेंस लगाता है साथ के साथ, उसमें मैंने देखा है कभी पैरों में काफी फ्लक्चुएशन रहता है, तो उस टाइप से वो यूज करते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम तो कमर में, पैरों में मतलब बढ़ रही है। अभी हाथ तो पहले से ही है, गर्दन अभी 3 महीने से ज्यादा झुक गया है, पहले फिर भी थोड़ा कम था, लेकिन सब और आवाज से तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ही थी, तो वो तो कम्प्लीटली अभी मुझे नहीं समझ में आता है। पहले समझ में आ जाता था लेकिन अब तो नहीं आता। हाँ, तो स्नेहा जी मैं ये आपको कहूँगा कि एक बारी ना जो आपका जब फिजियोथेरेपी हो रही होती है या जो आपका वो कर रहा होता है, या तो एक बार उनका वीडियो बना लीजिएगा। एक्चुअली आई आस्क बट शी डिनाइड कि हम वीडियो नहीं देंगे करके, तो ऐसा मुझे तो थोड़ा सा अननोइंग सा लग रहा है। मैं ट्राई करती हूँ कि दूसरे फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करूँ और फिर ये डॉक्टर पर का कंसल्ट कर लूँ ताकि वो कोऑर्डिनेट कर ले। सर का नंबर चैट बॉक्स में है, आप प्लीज वहां से ले लीजिए। जी जी मैंने नोट कर लिया है। Okay, Dr. Walia, there is another question for you. ये एक बहुत valid question है कि Mr. Padam Khatiwara is asking, what are the doable physiotherapy exercises
that can be performed for patients at home where physiotherapy devices are not available. He's तो from थोड़ी Bhutan. सी अगर आप एक्सरसाइजेस बता सके जो पेशेंट्स घर पे अपने आप कर सकते हैं. हाँ हाँ, वो भी बता सकते हैं. ये सबसे पहले उसकी कंडीशन जानना जरूरी है. ये क्या मैं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. ये मैं बता दूं पदम जी, आई मीन ही फ्रॉम भूटान. तो उनकी सिस्टर हैं, उनकी सिस्टर को प्रॉब्लम है, वो अनफॉर्चुनेटली उनका मेडिकेशन भी नहीं हो पाया, वो एक ही बारी मेडिसिन गया, पर उनकी प्रॉब्लम है. ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन. तो आप एक बारी उनसे ना डायरेक्ट कटवाड़ी से, आई मीन डॉक्टर वाली से 1:1 करके वो कांटेक्ट कर लीजिएगा. दैट वुड बी मच बेटर. आप उनको वीडियो में उनको दिखा भी देना सिस्टर को, तो वो जब देख के फिर वो उसी हिसाब से एडवाइस कर पाएंगे. जी ठीक है, थैंक यू. There is another question from Isaiah Exodus. Can an internal therapy that gives bioenergy and negative ion help in MND ALS? Dr. Gupta, if you would like to answer this. क्या दोबारा बोल, कम बोलो, कम अगेन. Can an internal therapy that gives bioenergy? Well, I mean, that need to be really understood first, ki what exactly you mean by bioenergy and how has it been given. I really, That is a very generalized question. and it would all depend from person to person, because how the case is, you cannot make it a generalized statement on that. Yeah. एक माधव प्रसाद जी हैं, आप प्लीज अपना सवाल पूछें. माधव प्रसाद जी, अनम्यूट करें अपने आप को. I think he's not available. परमीत मानीचा, आप कोई एक दोबारा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर एक चीज पूछना था, जो अरविंद सर हमको पैर का कोई एक्सरसाइज ऐसा बताते जो करने से पैर में बैलेंस पूरा बनता, चल नहीं पाते हैं, यही रिक्वेस्ट था उनसे. पैर का कोई एक्सरसाइज ऐसा बता देते जो पैर का एक्सरसाइज करने से. हाँ, पैर आपका आगे से गिरा हुआ है, घुटनों पे आपको? नहीं, चलने लगते हैं तो पैर का उंगली मुड़ जाता है. मुड़ जाता है ना, तो फुट ड्रॉप है. हाँ, पैर का उंगली मुड़ जाता है. या तो आप कोई वीडियो आपके पास हो ऐसा जो हमको भेज दीजिए. आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा. आप एक बार ना सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी उनको भी ऐसा आपका केस नहीं मालूम ना. पूरा प्रॉपर वो आपको देख भी लेंगे और आपको उस हिसाब से सजेस्ट करेंगे. आ रही है वो देखना पड़ेगा. हाँ, वो एक बार आपको देखना पड़ेगा ना. ठीक है. माधव शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं. माधव, आप पूछिए अपना सवाल. जी सर, नमस्कार सर. हाँ, नमस्कार माधव. 11 का पेशेंट माधव प्रसाद सर बात कर रहा हूँ. हाँ, बोलो सर. अभी सर गला में जो है, गला आगे की ओर झुक जाता है और ये ऐसे करके और झटके से उठाने का मतलब उठता नहीं है. और सर ये हाथों की उंगलियां जो है ये सर टेढ़ी हो रही हैं धीरे धीरे, और सर कुछ जो है मूवमेंट नहीं हो पा रहा है सर. और पैर भी जो है सर वो कमज़ोर हो चुका है सर, चलने में दिक्कत हो रही है और गिरने के चांसेस हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैरों में भी हो गई सर. चलो, ये तो पूरी आपकी प्रॉब्लम सारी हैं. इसको आई मीन विल बी उसको मेडिसिन के साथ साथ देख ही रहे हैं. और जहाँ तक इनकी सवाल है, तुम्हारी फिजियोथेरेपी का क्या सीन क्या है, गर्दन की और उसकी कुछ हो पा रही है? जी सर, 20 किलोमीटर दूरी में सर कोई हमारे इधर सर अवेलेबल हो पास? अब ये एक जैसे इशू है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट. आप डॉक्टर अरविंद, आप इनको देखो, इनकी कंडीशन देखो. He needs a proper physiotherapy, which is essential, not necessarily it is essential for him. And Dr. Nakul, I mean, this is one case where he doesn't have a facility available of physiotherapy. पर उनके लिए हम हमको जो सजेस्ट करते हैं, आप एक बारी डॉक्टर वालिया से मिलके ना बात करके आप इनको जो सजेस्ट करते हो खुद घर पे करें. और जैसे इन्होंने अभी स्टैटिक कॉलर के लिए बताया था, वो स्टैटिक कॉलर आप खरीद लो.
मतलब कुछ चीजें जो आप नहीं कर सकते, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो लेके आप अपने आप पर्सनली यूज कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद वाले से बड़ी कांटेक्ट कर लेना आप इनको। खाने प्रॉब्लम होती है जो है खाना निकालने के लिए। नहीं, वो सब वो तो है, दिक्कत तो है, पर जो जो गर्दन आपकी झुकती है ना, वो टिकती नहीं है, तो उसके लिए स्टैटिक कॉलर का फोटोग्राफ दिखाया था, वो यूज करके उसको करेंगे तो आपको खाने में भी कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। और जो बाकी की चीजें है ना, उनको करने के लिए तो वो जो जो गैजेट्स हैं, जो आप अपने लेके अपने घर पे खुद यूज कर सकते हैं, वो करें। और आपका जो है 20 किलोमीटर दूर आपका फिजियोथेरेपी सेंटर, तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास आके नहीं करा सकता आपको वहाँ पे? नहीं सर, अभी आने के लिए भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे सर। आप कहाँ पे रहते हैं माधव जी? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का प्रयागराज है। हाँ, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के बाद एक कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है सर। प्रयागराज से आगे सर। अच्छा। तो मैं डॉक्टर वालिया से बात करके आपके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आप अगर एड्रेस मिलेगा तो हम लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं आपके लिए वो भेजने के लिए। सर एक सवाल है सर, ये मेरा जो है राइट साइड में जो है ये कंधे से ऊपर जो ये अपना साइड है सर, वो इधर भी कभी कभी साइड इधर तो ज्यादा चार हो गया सर। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा माधव जी, आपका कनेक्शन लूज हो रहा है शायद। जा रहे सर आवाज में। हेलो माधव जी, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज जा रही है। चलिए आप इनका देखते हैं, प्रयास करते हैं कि आपकी जो डॉक्टर वालिया से कि इनके क्या क्या वो है, अगर जरूरत पड़ेगी तो विल सीक टू हेल्प इट आउट। ठीक है, हेलो नेक्स्ट। हाँ, that's it for all the questions. यही सारे क्वेश्चंस थे, सवाल थे। एंड आई एम श्योर आप सबको काफी आप सेटिस्फाइड होंगे अपने आंसर से और क्वेश्चन से। आई एम श्योर डॉक्टर वालिया और डॉक्टर गुप्ता ने पूरी कोशिश करी है आपको चीजें समझाने में, और किस तरह आप होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी की हेल्प से किस तरह ठीक हो सकते हैं, और किस तरह इवन चाहे आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट ना भी हो तो भी आप आज की डेट में लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर वालिया अवेलेबल है, उनसे टाइम लेके उनसे मशवरा कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कैसे चीजें करनी है, कैसे नहीं करनी। और जो हमारे पेशेंट्स जो थोड़े से इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, आई एम श्योर शांति फाउंडेशन एंड एकेजी ओवीएम्स का जो ये कोलैबोरेशन है, उससे वी विल ऑल बी एबल टू हेल्प यू आउट। आप प्लीज हिम्मत ना हारे, हमेशा कोशिश करते रहें। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही तो भी करनी है। वो जरूरी ये है कि छोड़ना नहीं है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि ये लड़ाई है तो लड़नी तो पड़ेगी। और अगर हम उसको छोड़ जाएंगे तो हम वैसे ही हार जाएंगे। छोड़ना नहीं है बस, क्योंकि फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मसल्स को रीजेनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं नर्व्स के माध्यम से। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप किसी भी समय अपना मन ना हारें और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्सरसाइजेज ना छोड़ें। कहीं भी आप लोगों को जरूरत पड़ती है, एकेजीज ओवीएम्स, शांति फाउंडेशन एंड डॉक्टर वालिया हमेशा आप लोगों के साथ है। जहां भी आपको जरूरत पड़े प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। आपके पास डॉक्टर नकुल का भी नंबर है लास्ट मीटिंग का। सर एक बार आप दोबारा अगर आप शेयर कर सकते हैं। विल लेट डॉक्टर नकुल फॉरवर्ड also. नकुल सर भी जो शांति फाउंडेशन से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट वेबिनार में आप लोग सबने देखा था, तो वो बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। तो आप हमेशा हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी तरीके के सवाल के लिए, किसी भी तरीके की हेल्प के लिए। वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिला होगा आज के वेबिनार से, और हमारी कोशिश रहेगी हम आगे और ऐसे वेबिनार्स करते रहें, और चीजों में किस तरह हम एमएनडी पेशेंट्स की और केयर गिवर्स की हेल्प कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर कार्तिक गुप्ता हैं, जो कि गुवाहाटी से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास वहाँ पे बल्कि नरेश जी भी हैं जो काउंसलर हैं,
वो फिजिकली अवेलेबल होते हैं, आई मीन पीतमपुरा क्लिनिक पे और रजौरी क्लिनिक पे भी, तो वो जी। उनकी भी हेल्प ली जा सकती है साथ में। Yes, किसी Dr. Naresh is also there. So I I would like to thank you all I and would like to हाँ, ask Dr. Nakul Parashar also to say a few words. मैं जी ये बोल नमस्कार। आज का सेशन मैंने बहुत ध्यान से सुना, आप लोगों की सबकी बातें सुनी, और एक बात जो मुझे अपने एंगल से समझ में आई वो ये कि आप लोगों को अपनी दवाएं नहीं छोड़नी है, दवाएं जारी रखनी है। और दवाओं को जारी रखने के लिए अगर आपको कहीं लगता है कि आप उसको अपने वित्तीय कारणों की वजह से उसका नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक बार लिखिए, बात करें। और दूसरी बात, आज डॉक्टर वालिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी उनसे पहली मुलाकात जरूर है, पर जिस तरह से उन्होंने अपना अनुभव सबके साथ साझा किया है वो बहुत ही जरूरी था। और डॉक्टर वालिया द्वारा बताए गए जो भी इक्विपमेंट्स आपको पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं दूर दराज में है, रिमोट रूरल एरियाज में है, तो हमें बताएं। आजकल कुरियर की मदद से वो सब पहुंचाया जा सकता है। पर आप सब लोगों से एक ही मेरा अनुभव, एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि ये जंग है जिसे हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना है, और इसमें आप को सबसे मजबूत होकर चलना पड़ेगा। अगर आप मजबूत होंगे तो हम ये लड़ाई जीत पाएंगे, जिसके बहुत सारे हमारे पास केस स्टडीज मौजूद हैं। और विज्ञान 2047 जो पत्रिका है, इस पर डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सीरीज आर्टिकल्स का लिखना शुरू किया है। और आने वाले अंक के अंदर हम एक केस स्टडी को लेंगे जिसके अंदर वो बताएंगे कि कैसे उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति और डॉक्टर गुप्ता की मदद से और उनकी दवाओं की मदद से इसको आगे किया। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और आप लोग आगे बढ़ें। और इसके अंदर दूसरी और बात होती है कि मुद्दा सुस्त गवाह चुस्त है। इसके अंदर आपको बहुत चुस्त रहना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग अबाउट इट, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर strength that will empower the medicines to reach the right point effectively. ये Besides हैंड this, बजे besides this, it is also हैंड very important. भेजिएगा It is also very important for all of you to understand that this is something which requires consistency. It is something not like I have just got recovered, let me stop it. No. The moment you do it, you are going to slide down 10 steps below. All those efforts that you have made to reach a point will only sustain or will only improve if you do it consistently, and consistently do it right way. The way Dr. Gupta and Dr. Walia have told you, please follow them. And this is my handfolded request to you, because this is just not something that we would want for any personal gain or effort. It is Yes. for all of you to, recover from it, get to a point which will then convert this society in a strong nation. We are all here for one reason, that we are all here to see that now that all of you are back to normal, are back to the same power with which you were there earlier. So on this note, I know I don't want to be prophetic or I don't want to be sermonizing, but this is a fact that in life, whether it is your cure or whatever, it has to be done consistently. And with all that effort, if you do it, the case studies that we are going to discuss in Vigyan 2047 will clearly manifest how these people who have had problems have succeeded. Having said this, I would again request all of you that Shanti Foundation is there to assist AKG OVHEMS in its mission to ensure that this country is free of MND. सो आप सब लोग हिम्मत रखें, आगे बढ़ें। हम आपको जो भी हमारी तरफ से छोटी बहुत जो भी सहायता हो सकती है उसको देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. We also had one international patient with us, Osmo Almaki. Would you like to ask something, Osmo, or just share something? I think he's unmuted himself.
एक क्वेश्चन आया है बनवारी सोनीवाल जी से. आप Osmo, yes, Osmo is there. Yeah. Yes, Osmo, So, please go I ahead. don't have any question. I'm only following the Yeah. very active discussion. Mm-hmm. No, thank you. No question. No question. No question. Thank you All very right, much. thank you, Osmo. Thank you Hope being you with us. enjoyed. Thank you being with us. And next month also we'll have another webinar. Will be which will get the intimation of. एक आखिरी क्वेश्चन आया है बनवारी सोनीवाल जी से. आप प्लीज बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को. बनवारी जी, अनम्यूट करें सर अपने आप को. कार्तिक, इफ यू कैन अनम्यूट हिम. वो ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता. आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए बनवारी जी, अपने अपने आप को अनम्यूट करो. सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोग बोलिए. वो उनको अपना फोन से वो हटाइए. आपको अपने आप को देखिए, माइक्रोफोन बना हुआ, उस पे क्लिक कीजिए, वो हट जाएगा. आपकी आपका आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ बनवारी रही. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. I think you cannot do it as an admin, your host. Not unmuting. नहीं, he's done it at his end. Unmute नहीं हो नहीं. वो हटाइए ऊपर से, जो माइक का जो चिन्ह बना है ना, उसको दबाइए ना एक बार. सुनिए ना सोनीवाल जी, ये ऊपर जो माइक का चिन्ह बना है उसको दबाइए. आपका फोन में आपके ऊपर वो बना हुआ है माइक के, जिसमें कांटा लगा हो, उसको क्लिक कर दो. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को. जी बोलिए, बोलिए बोलिए. बनवारी जी बोलिए. हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते. हम सुजानगढ़ से बोल रहे हैं, राजस्थान से. जी नमस्कार. हाँ, अभी 6 महीनों से दवाई चल रही है, ठीक है. और 2 महीना पहले गिर गए थे, तो दिमाग में आप अनम्यूट है, आप म्यूट है. डॉक्टर कार्तिक तो हमने 27 तारीख को दवाई लिए था, उससे हमारे फायदा है. हाँ, झुक के चलते थे, अब झुक के चल रहे हैं. आपको वीडियो भेजते हैं. अच्छा. ठीक है. 15 दिन में बहुत फायदा हुआ. आपको वीडियो भेजता हूँ. थैंक यू. ठीक है. ऐसे झुक के चलता था, अब सीधा चलते हो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आपको वीडियो भेजता हूँ. ठीक है, थैंक यू. अब डॉक्टर साहब तो कार्तिक जी से बात करना है. हाँ, जितने के बाद अब 10 बैठ गया. ठीक है. नहीं चल रहा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप कार्तिक जी से भी बात कर लीजिएगा. मजा आता है. ठीक है, चलिए. थैंक यू. थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. सीधा आज वीडियो बनाया, मैं आपके भेजता हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.
ठीक है, थैंक यू मनोहर लाल जी, धन्यवाद धन्यवाद। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी गॉन, 1.5 घंटे का टाइम निकल गया 1 घंटे के वेबिनार से। आई थिंक ये पीएसटी कटिंग सॉल्यूशन, आई थिंक वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। हाँ, पूछ लो सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कैसे हो? मैं मुंबई से हूँ, सर्जेराव बोले। हाँ जी, कैसे सर्जेराव जी? मेरे दोनों हाथ में ताकत नहीं, बिल्कुल मैं चलता हूँ, यानी सोएगा तो ताकत नहीं, उठने के लिए नहीं आता है, नहाने के लिए नहीं आता है, सब। मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, फिजियोथेरेपी भी करता हूँ सर भाई। नहीं, फिजियोथेरेपी में जो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका वो इम्पोर्टेंट है कि वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है, कि उसको वो साथ साथ आपने जो मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइजेज का इन अ प्रॉपर मैनर और कंसिस्टेंसी और उसकी रिपीटिशन वो ज़रूरी है। मतलब खाली एक बार ही अगर कर लेते तो बहुत ज़्यादा एनफ नहीं है। यू नीड टू डू इट 2-3 टाइम्स इन अ डे एट अपने आप, जो अपने आप कर सकते हैं वो। एक्सरसाइज मैं हर दिन करता हूँ सर, और मेरा टंग का भी जो व्यायाम जो है, एक कसरत है, वो भी करता हूँ। मेरे को खाने में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है। मैं खाना खा सकता हूँ, चलता हूँ मैं सर, लेकिन तकलीफ ये है कि मेरे हाथों में ताकत नहीं है, ऊपर हाथ नहीं होता है। शोल्डर के मसल पूरे वीक हुए हैं। शोल्डर अभी थोड़ा सा बढ़ने लगा है, थोड़ा सा शोल्डर बढ़ने लगा है सर। पहला एकदम अंदर था शोल्डर, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है सर। वेरी गुड, ठीक है, तो उसका मसल थोड़ा जनरेट होना शुरू हुआ है। जरूर सर। चल ठीक है, आप इसको कैरी ऑन करें विद रेगुलरिटी एंड ऑल दैट, गॉड विलिंग ये भी इसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आई थिंक वी शुड वाइंड अप। Yeah, right. Thank you so much, everyone. Thank you, first of all, Dr. अरविंद वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हम सब पेशेंट्स को। एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल सेशन रहा। आई एम श्योर सब पेशेंट्स ने बेनिफिट उठाया इसका, एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू whoever wants to, and please guide them well as you've been guiding all our patients. And a big thank you to Dr. Nakul Parashar and the Shanti Foundation for carrying out the noble work, sir. Thank you very much, sir. We are all indebted to you. And thank you to all the patients, all the caregivers who have joined today, and Dr. Karthik as well. He's our clinical psychologist, as you all know. And I hope with all this great efforts,